Hello, dear students. Dear students, this will be our lecture 5th of the General Organic Chemistry. In this very lecture, we are going to discuss types of resonance. इससे पहले रेजोनेंस के 3 लेक्चर्स यहाँ पे हमारे आ चुके हैं. रेजोनेंस फर्स्ट, रेजोनेंस सेकंड में हमने कंडीशंस फॉर रेजोनेंस डिस्कस किया है. रेजोनेंस थर्ड में हमने यहाँ पे डिस्कस किया स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. नाउ types of resonance, as the topic indicates, types of resonance. For example, dear students, इस तरह से हमारे पास कोई एग्जाम्पल होगी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH. यहां पे कोई ग्रुप होगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज OH, दिस इज OH. नाउ और एक एग्जाम्पल यहां पे होगी इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O. यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहां पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज. हाँ, शाबाश. दिस इज OH ग्रुप, दिस इज NO2 ग्रुप, मींस नाइट्रो ग्रुप. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देख लीजिए कंजुगेशन क्या है. फर्स्ट एग्जांपल में यहां पे लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई या पाई सिग्मा लोन पेयर. दिस विल मूव हियर एंड दिस विल मूव हियर एंड दिस विल मूव हियर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए दिस लोन पेयर इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द डबल बॉन्ड और टू द कंजुगेटेड सिस्टम. मैंने कहा है रेजोनेंस सेकंड में व्हाट इज कंजुगेशन. देयर मस्ट बी अल्टरनेट सिग्मा, alternate pi sigma lone pair, pi sigma what we can say positive charge, pi sigma pi, pi sigma free radical. Shabash. Here in this very case O contains, O के पास lone pair of electrons है which is donating, this very OH group is donating its electrons, it is lone pair to the conjugated system. Here in this very case देख लीजिए यहां से रेजोनेंस यहां से स्टार्ट होगी. This very pi bond will move here, this very pi bond will move here and this will move here. यहां पे देख लीजिए नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है which is more electronegative than nitrogen. आप यहां पे देख लीजिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है. यहां पे इस तरह से कंफ्यूज मत हो जाए. यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है. यहां पे नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन एटम है which is more electronegative in character than nitrogen. यहां से this very NO2, in other words this very NO2 withdraws electrons from conjugated system, देख लीजिए here in this very case OH donates electrons to the conjugated system. Shabash. In the first example, there is a group OH which is donating electrons to the conjugated system. In the second example, there is a group NO2 which is withdrawing, which is attracting electrons from the conjugated system. My dear students, on the basis of groups, those groups which will donate electrons to the conjugated system are known as electron donating groups, and these very groups have plus R or plus M effect. My dear students, resonance effect is also known as mesomeric effect. Resonance effect is also known as mesomeric effect, but there is a slight difference between resonance and mesomerism. यहां पे मैं वो बताऊंगा, लेकिन इतना आप याद कीजिए कि those electrons which are donating electrons to the conjugated system are said to have plus R effect, and those groups which are withdrawing electrons from the conjugated system are said to have minus R effect. Resonance effect is of two types, plus R effect and minus R effect. Shabash.
यहां पे हम देख लेंगे। ये एग्जांपल आप लोगों ने देख ली कि एक एग्जांपल में एक ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, दूसरे एग्जांपल में एक ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। जहां पे दे रहा है प्लस आर इफेक्ट, हाँ, जहां से ले रहा है माइनस आर इफेक्ट, या हम कहेंगे प्लस एम इफेक्ट भी। हाँ, शाबाश। देख लीजिए। नाउ टाइप्स ऑफ रेजोनेंस में वी विल सी दैट रेजोनेंस इज ऑफ टू टाइप्स। Two types. First one is those groups donating electrons to a conjugated system are said to have, yeah, we will say that have plus R oblique plus M effect. For example, dear students, OH lone pair of electron है, OR lone pair of electron है, यहाँ पे NH2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NHR लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NR2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एटसेट्रा। उन ग्रुप्स those groups which are having lone pair of electrons, जिनके पास lone pair of electron होगा, and they will donate it to the conjugated system, we will say that they have शाबाश प्लस आर इफेक्ट। बस इतना याद रख लीजिए कि उन दोज ग्रुप्स जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो कंजुगेटेड सिस्टम को वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेंगे, एंड we will say that they will have plus R or plus M effect, mesomeric effect, what we can say resonance effect। For example, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास बेंजीन रिंग है। ये एग्जांपल्स हमने बार बार यहाँ पे डिस्कस की है, यहाँ पे फिर से कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा OH, लोन पेयर। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दिस विल मूव हियर एंड दिस विल मूव हियर। नाउ as O is donating its lone pair of electron to the benzene ring, यहां से ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आर्थो पोजीशन पे। बार बार मैंने बताया है कि जो कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप को दिस वेरी कार्बन एटम इज अटैच्ड टू OH, उसका एडजेसेंट कार्बन एटम आर्थो, और आर्थो का एडजेसेंट मेटा का एडजेसेंट पैरा। दीज आर टू आर्थो पोजीशन, दीज आर टू मेटा पोजीशन, एंड दिस इज पैरा पोजीशन। नाउ यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज। नाउ देख लीजिए, दिस वेरी नेगेटिव चार्ज विल मूव हियर एंड दिस वेरी पाई बॉन्ड विल मूव हियर। अच्छी तरह से देख लीजिए, इससे पहले भी ये एग्जांपल हमने डिस्कस की है। यहाँ पे दिस इज OH, यहाँ पे लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज। नाउ this will move here and this will move here, और फिर से आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज। शाबाश, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे O लोन पेयर पॉजिटिव H। नाउ दिस वेरी नेगेटिव चार्ज मूव्स हियर एंड दिस मूव्स हियर, दिस वेरी पाई बॉन्ड मूव्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जहां पे ऑक्सीजन पे फिर से जो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे खत्म हो जाता है। शाबाश। O. These are the 5 resonating structures in case of phenol. Now देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर बेंजीन रिंग को कोई भी ग्रुप अटैच होगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो ग्रुप वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा किसको? बेंजीन रिंग को या कंजुगेटेड सिस्टम को। वी विल से दैट it will have plus RR plus M effect, plus RR plus M effect। शाबाश। नाउ अगर यहाँ पे OR होगा या NH2 होगा या NHR होगा या NR2 होगा या और कोई ग्रुप होगा, शाबाश। नाउ वी विल से दैट
these very groups have plus R effect. These very groups have plus R effect. देख लीजिए, मैंने इससे पहले भी यहां पे बताया है, दिस इज आर्थो, दिस इज आर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा. यहां पे देख लीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इनके साथ फिनाल, इनके साथ आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, फिर से आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है. दैट मीन्स whenever there is the presence of any plus R group, whenever there is the presence of any plus R group in case of phenol, it increases the electron density at ortho and para positions. बस इतना अभी तक आप याद रख लीजिए कि negative charge increases, that there is maximum electron density, that there is maximum electron density. अगर आप लोगों को कोई बताएगा कि in case of phenol what are the positions in which there is maximum electron density, वो आर्थो एंड पैरा है, वो आर्थो एंड पैरा है. और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है? शाबाश, वो मेटा पोजीशन पे होती है. हाँ, शाबाश. Now this is all about plus R groups, those groups which are donating electrons to the conjugated system, and they will increase the electron density in the conjugated system. Mind it. Shabash. Now those groups which will withdraw electrons from the conjugated system are said to have माइनस आर है, माइनस एम इफेक्ट. हाँ, शाबाश. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यहां पे हम लिखेंगे सेकंड में ग्रुप्स withdrawing electrons from a conjugated system have minus R oblique minus M effect. For example, NO2, C double bond aldehydes, ketones, C double bond O, single bond, carboxylic acids, OH, etc. These groups will have shabash minus R effect. They will withdraw electrons. देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, एक सिंपल सी ट्रिक याद रख लीजिए. यहाँ पे मैं कह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, इफ देयर इज बेंजीन रिंग, यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग होगी, मैंने अभी इन केस ऑफ प्लस आर ग्रुप कहा कि अगर कोई ग्रुप एक्स होगा उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. अगर कोई इन केस ऑफ प्लस आर ग्रुप, अगर कोई ग्रुप होगा एक्स, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो लोन पेयर किसको डोनेट कर लेगा? बेंजीन रिंग को. एंड एट दैट वेरी टाइम वी विल से दैट दिस इज प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट. लेकिन अगर बेंजीन रिंग होगी, अगर बेंजीन रिंग होगी, उसके साथ एक्स डबल बॉन्ड वाई होगा. याद रख लीजिए, एक्स डबल बॉन्ड वाई. एक्स कोई एलिमेंट होगा, वाई भी कोई एलिमेंट होगा, एंड वाई हैव मोर, वाई हैज मोर electronegativity. Yeah, we will say that y is more electronegative, y is more electronegative than x. Y is more electronegative than x. Remember that. Y has more electronegativity than x. X जो group directly benzene को attach होगा, which is attached to any other element. For example, that is Y. That is, but the electronegative character of Y is more than X. That very Y will attract this very shared pair towards itself. यहाँ पे जब इसने Y ने अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर, तो X पे X becomes electron deficient. That is why X will withdraw electrons from the benzene ring. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे N है, N को कंसिडर कीजिए X, ऑक्सीजन को कंसिडर कीजिए Y. O is more electronegative in character than N. That is why. हालांकि आप लोग समझ रहे होंगे कि N के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन My dear students, in case of NO2 group, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाता है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन एटम भी होता है, जो मैंने अभी दिखाया, और यहाँ पे एग्जांपल में भी मैं दिखाऊंगा. ऑक्सीजन इज विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N, N in turn
withdraws electron from the benzene ring. यहाँ पे देख लीजिए, oxygen is more electronegative in character than carbon. Means X here is carbon, Y here is oxygen. Y withdraws electrons from carbon, carbon in turn will withdraw electrons from the benzene ring. Same is the case here, same is the case here, and same will be the case in other examples. For example, याद रख लीजिए, यहाँ पे हम कहेंगे माइनस R इफेक्ट, R माइनस M इफेक्ट. हाँ, शाबाश. यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को. यही एग्जाम्पल, दिस एरो इंडिकेट्स एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यहां पे ऑक्सीजन देख लीजिए, हियर X इज नाइट्रोजन, Y इज ऑक्सीजन. Y is more electronegative in character than X. That is why we will say that this will move here and this very pi bond will move here. शाबाश. देख लीजिए, फर्स्ट क्या होगा, रेजोनेंस क्या है, what is the conjugation here, this is pi, sigma and pi. This very pi bond will move here, this very pi bond will move here. यहां पे कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स. दिस बिकम्स N, यहां पे पॉजिटिव है O, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, O पे नेगेटिव चार्ज. लेकिन आर्थो पोजीशन पे यहां पे पॉजिटिव चार्ज. क्यों? बिकॉज दिस वेरी पाई बॉन्ड मूव्स हियर, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज. नाउ और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. नाउ यहां पे कौन सी कंजुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज. दिस वेरी पाई बॉन्ड विल मूव हियर. नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट, देयर आर टू पाई इलेक्ट्रॉन्स. ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का. अच्छी तरह से समझ लीजिए, बार बार मैं यहीं पे बता रहा हूं, when these very two pi electrons will move here, इस कार्बन एटम पे तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये कार्बन एटम है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां शिफ्ट हो गया. दैट इज व्हाई इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. हाँ, शाबाश. मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे अब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और एक बॉन्ड यहां पे है, यहां पे N पॉजिटिव, O नेगेटिव, यहां पे O. हाँ, शाबाश. यहां पे अब पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज था, अब पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है. फिर से यहां पे कंजुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, दिस विल मूव हियर, दिस विल मूव हियर. अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. हाँ, शाबाश. यहां पे ये मैं मिटाऊंगा. नाउ यहां पे आप पॉजिटिव चार्ज खत्म, अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पे डबल बॉन्ड है, N पॉजिटिव, O नेगेटिव, यहां पे O. नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस वेरी नेगेटिव चार्ज मूव्स हियर एंड दिस मूव्स हियर. N पॉजिटिव, यहां पे O, डबल बॉन्ड O. These are the 5 resonating structures in case of nitrobenzene. NO2 group is known as nitro and it is attached to the benzene ring. Here, dear students, the group which is attached to the benzene ring is withdrawing electrons from the benzene ring. It is withdrawing electrons from the benzene ring. That is why we will say that it has minus R or minus M effect. NO2, same resonating structures will be benzene ring को जब अटैच होगा ये अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप या NHC डबल बॉन्ड OCH3 या एस्टर डायरेक्टली अटैच होगा कार्बोनाइल ग्रुप से बेंजीन रिंग को, या एसिड क्लोराइड अटैच होगा. My dear students, these will have minus R effect. These will withdraw electrons because Y is more, X is equal, X double bond Y, X double bond Y. Y is more electronegative in character than X. जो मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को दे दी. Because here in this very case, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, that is why it is withdrawing electrons. यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, in case of plus R effect. In case of plus R effect, group donate कर रहा था इलेक्ट्रॉन conjugated system को. In this very example, the conjugated system was benzene ring. आर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता था, लेकिन जब ये विड्रा इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, यहां पे भी इफेक्ट ज्यादा पड़ता है. किस पे? आर्थो और पैरा पोजीशन पे.
आर्थो पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, फिर से आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। माइंड इट डियर स्टूडेंट्स, माइंड इट। यहां पे आप लोगों ने देख लिया, जब हमने प्लस आर इफेक्ट देख लिया, प्लस आर इफेक्ट की एक एग्जांपल, माइनस आर इफेक्ट की एक एग्जांपल हमने देख लिया। सिर्फ इफेक्ट ज्यादा पड़ता है आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। जब प्लस आर ग्रुप होगा तो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है। जब माइनस आर ग्रुप होगा तो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। ये याद रख लीजिए। हाँ, मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नहीं प्लस आर ग्रुप में और नहीं माइनस आर ग्रुप में। शाबाश, बस दिस इज ऑल अबाउट प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ये बात घूम रही होगी, सर आपने अभी बताया कि देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन M denotes as the mesomeric effect and R denotes as the resonance effect। 99% इंटरनेट में भी आप लोग देख लोगे कि सेम, हर एक, अगर YouTube पे भी क्लास होगा तो हर एक बंदा यही कहेगा दीज आर सेम, प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट, ऑलमोस्ट सेम। दैट इज ट्रू, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस, देख लीजिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, CH2 double bond CH, single bond CH, double bond CH2, this is butadiene, buta 1,3 diene। यहां पे देख लीजिए रेजोनेंस, हम कहेंगे दिस विल मूव हियर, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगी CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। हाँ, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली बिटवीन कार्बन एटम्स। यहाँ पे सिर्फ डिलोकलाइजेशन में ये कार्बन एटम, कार्बन है, हाइड्रोजन एटम्स है। शाबाश। अगर कोई हेटेरो एटम होगा, फॉर एग्जांपल OH, फॉर एग्जांपल NO2, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड हो, वो डिलोकलाइजेशन में पार्ट प्ले कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिस तरह से मैंने प्लस आर इफेक्ट में कहा, माइनस आर इफेक्ट में कहा, या मैंने कहा प्लस आर इफेक्ट को तब प्लस एम इफेक्ट भी कहा जाता है, हाँ, माइनस आर को माइनस एम भी कहा जाता है। लेकिन यहां पे सिर्फ हम कहेंगे देयर इज रेजोनेंस, सिर्फ हम कहेंगे देयर इज रेजोनेंस, हाँ, देयर इज रेजोनेंस मीन्स डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बिटवीन कार्बन एटम्स ओनली। वहां पे कोई हेटेरो एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे हम मेसोमेरिज्म नहीं कह सकते या मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट है। व्हेन डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्स ओनली बिटवीन कार्बन एटम्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। हाँ, अगर कोई हेटेरो एटम होगा तब हम कहेंगे शाबाश ये प्लस आर है या माइनस आर है, प्लस आर है या माइनस आर है। अगर डोनेट कर रहा है तो प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम भी कहेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट। हाँ, अगर विड्रॉ कर रहा है तो हम कहेंगे माइनस आर या माइनस एम। लेकिन वहां पे इन्वॉल्व होना चाहिए कोई हेटेरो एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट मे बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एटसेट्रा एटसेट्रा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस इतनी डिफरेंस है ऑलमोस्ट। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग 99% ऑफ द केसेस आर सेम। शाबाश। यहाँ पे हम सिर्फ रेजोनेंस कहेंगे, यहाँ पे हम मेसोमेरिज्म या मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे नहीं है, because delocalization is only between carbon atoms. Shabash. This is all about plus R effect and minus R effect. Now, और mesomeric effect। यहाँ कहीं पे मैंने यहाँ एक रेजोनेटिंग, पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाए हैं। सेम विल बी द केस विद हियर, यहाँ पे भी और एक एग्जांपल में है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन से। उनका सिंपल टर्म्स में याद रख लीजिए, कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है बेंजीन को। एट दैट वेरी टाइम वी विल सी दैट माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। हाँ, शाबाश। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी विल हियर डिस्कस द व्हाट वी कैन से इफेक्ट्स या एप्लीकेशंस। इफेक्ट्स आर एप्लीकेशंस। हाँ, शाबाश। इफेक्ट्स आर रेजोनेंस या इफेक्ट्स ऑफ प्लस आर एंड माइनस आर, या एप्लीकेशंस ऑफ प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। हाँ, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट। हाँ,
देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज विद रेस्पेक्ट टू एप्लीकेशंस। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं बहुत पिछले एग्जामिनेशंस में, नीट, जेई मेंस में, with respect to plus r and plus r, or we can say plus m minus r minus m effects related questions पूछे गए हैं। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, माइंड इट। अभी मैंने कहा कि प्लस आर इफेक्ट हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख लिए, वहां पे मैंने कहा याद रख लीजिए, फर्स्ट एप्लीकेशन प्लस आर इफेक्ट increases electron density, increases electron density of the conjugated system, especially at ortho and para positions। हाँ, अभी हमने देख लिया डियर स्टूडेंट्स, जब कोई कहीं पे भी प्लस आर ओब्लिक यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस एम। हाँ, इफेक्ट इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कहां कहां किस किस पोजीशन पे, मेनली एट अर्थ एंड पैरा पोजीशन। शाबाश। और एक यहां पे माइनस आर माइनस एम इफेक्ट, इसका डिक्रीजेस electron density of the conjugated system, especially at ortho and para positions। अभी आपने देख लिया जब NO2 ग्रुप अटैच था बेंजीन रिंग को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, पॉजिटिव चार्ज ड्यूरिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपने देख लिया। इसका मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, कहां कहां किस किस पोजीशन पे, मेनली शाबाश ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। हाँ, बोथ इन केस ऑफ प्लस आर वहां पे इंक्रीज होती है, माइनस आर इफेक्ट शाबाश वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डिक्रीज होती है। और एक चीज याद रख लीजिए, resonance will have, याद रख लीजिए बेटा, no effect at, शाबाश, दोनों में देख लिया आपने, मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये तीन चीजें आप याद रख लीजिए, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, ये तीन चीजें आप याद रख लीजिए। विद रेस्पेक्ट टू दीज वेरी थिंग्स, हम यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, शाबाश। विद रेस्पेक्ट टू दीज वेरी थिंग्स, दीज वेरी कंसेप्ट्स, विद रेस्पेक्ट टू दीज वेरी कंसेप्ट्स, हर एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट दिमाग में आ गया कि कौन सा, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, प्लस आर ग्रुप है, कौन सा माइनस आर ग्रुप है, इफेक्ट क्या करता है, और मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट है और क्यों है, दोनों इफेक्ट्स में, दोनों पोजीशंस पे जब प्लस आर होगा या माइनस आर होगा, मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं है। रेजोनेंस का मैं रेजोनेंस की बात कर रहा हूं, रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर रहा हूं, शाबाश। और एक चीज, शाबाश, यहां पे आप लोगों ने देख लिया एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, तीन यहां पे हमने अभी डिस्कस किए विद रेस्पेक्ट टू दीज वेरी थ्री। आफ्टर दैट और एप्लीकेशंस है यहां पे, लेकिन ये विद रेस्पेक्ट टू दीज थ्री यहां पे हम क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो जेई और नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हाँ? शाबाश। क्वेश्चन इस तरह से होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग will have maximum electron density in the ring, किस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ए पार्ट होगा, यहां पे सिंपल बेंजीन है, बी पार्ट है
यहाँ पे बेंजीन रिंग को OH अटैच है, C पार्ट है, यहाँ पे बेंजीन रिंग को Cl अटैच है एंड D पार्ट है, यहाँ पे बेंजीन रिंग को CH3 अटैच है। शाबाश। Which of the following will have in this very question? We will say that which group is electron donating, which group has plus R effect and which will have minus R effect. यहाँ पे बेंजीन रिंग है, कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, we will say that no effect. In this very example, देख लीजिए dear students, OH is attached to the benzene ring, अभी मैंने कहा it will have plus R effect, और उसके साथ साथ हमने इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे डिस्कस किया। मैंने कहा था इनके सब सैचुरेटेड सिस्टम, अगर कोई वहां पे मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक सैचुरेटेड सिस्टम को अटैच होगा, वहां पे सैचुरेटेड सिस्टम की बात कर रहे थे इनके सब इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे अनसैचुरेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, जहां पे वो अनसैचुरेटेड सिस्टम जहां पे कंजुगेशन होगी, दैट्स व्हाई वी विल सी दैट देयर विल बी द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और उसी कंसेप्ट को नाम दिया गया रेजोनेंस। नाउ वहां पे मैंने कहा था अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई सैचुरेटेड ग्रुप को, सैचुरेटेड रिंग, सैचुरेटेड सिस्टम को अटैच होगा, इट विल विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स। मींस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इट विल हैव आल्सो माइनस आई इफेक्ट। शाबाश। नाउ देख लीजिए, हमेशा याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट याद रख लीजिए, हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट, हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट, वेदर इट मे बी प्लस आर माइनस आर, whether it may be plus R या plus M या minus R या minus M, रेजोनेंस इफेक्ट मैं यहां पे लिखूंगा रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट मैं ब्रैकेट में लिखूंगा प्लस R एंड माइनस R, ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर प्लस I एंड माइनस I इफेक्ट, always dominates over plus I and minus I इफेक्ट, मतलब ये उससे ज्यादा होता है, ये उससे प्लस R माइनस R ज्यादा होता है प्लस I माइनस I। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट याद रख लीजिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, वहां पे क्या होता है देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, नहीं फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं, वहां पे इनका देख लीजिए, यहां पे भी एग्जांपल है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, it will have the tendency to donate the electrons to the conjugated system, it will have plus R effect also, or chlorine is more electronegative in character than carbon, it will have minus I effect also। आपको मेरी बात समझ आ रही है? शाबाश। इट विल हैव प्लस आर माइनस आर, यहाँ पे प्लस आर माइनस आई, यहाँ पे प्लस आर माइनस आई, लेकिन रिमेंबर दैट, हमेशा याद रख लीजिए, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर माइनस आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्लस आर आई एंड माइनस आई, एक्सेप्ट इन केस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के पास प्लस आर और माइनस आई इफेक्ट भी होता है, वहां पे माइनस आई ज्यादा होता है प्लस आर से, बस याद रख लीजिए, ना कि इन केस ऑफ फ्लोरीन, इन केस ऑफ फ्लोरीन, इन केस ऑफ फ्लोरीन, इन केस ऑफ, याद रख लीजिए, इन केस ऑफ फ्लोरीन प्लस आर इज ग्रेटर देन माइनस आई, यहां पे मैं लिखूंगा इन केस ऑफ फ्लोरीन, इन केस ऑफ, याद रख लीजिए। हाँ शाबाश, ये मैं इसका रीजन भी बस इतना याद रख लीजिए। विद रेस्पेक्ट टू रेजोनेंस, विद रेस्पेक्ट टू रेजोनेंस इफेक्ट, यहां पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन ये कंसेप्ट याद रखिए, हमेशा प्लस आर माइनस आर ज्यादा होता है प्लस आई माइनस आई से, एक्सेप्ट तीन एलिमेंट्स हेलोजन्स, हेलोजन्स में फ्लोरीन को बाहर निकाल लीजिए, वहां पे माइनस आई ज्यादा होता है प्लस आर से, हाँ, लेकिन इन केस ऑफ फ्लोरीन प्लस आर इज ग्रेटर देन माइनस आई। शाबाश। जब ये एग्जांपल्स वहां पे आ जाएंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इतना याद रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, यहां पे हम अब ये एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन, ये
ये एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, बस इतना ये नोट कीजिए जो मैंने अभी कहा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब इन केस ऑफ जनरल कंसेप्ट प्लस आर ज्यादा होता है माइनस आर ज्यादा होता है प्लस आई माइनस आई से, मीन्स यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है, यहाँ पे ये प्लस आर ही ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ही ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस आर, मीन्स यहाँ पे प्लस आर तो नहीं है, यहाँ पे तो प्लस आर बहुत कम है, माइनस आर डोमिनेट कर लेगा। और यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट, सिर्फ प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है। अभी तक तो हमने सिर्फ दो पढ़े हैं, यहाँ पे दो डिस्कस किए हैं, दो इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, यहाँ पे आई डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट डिस्कस कर लेंगे। CH3 का हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट भी होता है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू दीज वेरी एग्जांपल्स यहाँ पे मैं सिर्फ कहूंगा प्लस आई इफेक्ट है। हाँ, इसका प्लस एच इफेक्ट भी होता है, लेकिन जो एग्जांपल्स अब हम हाइपर कंजुगेशन डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बाद वो डिस्कस कर लेंगे कि वो इफेक्ट भी अप्लाई कर लेंगे। देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। फर्स्ट, बेंजीन रिंग का कोई इफेक्ट, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट है, मीन्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होगी, बेंजीन रिंग की। आंसर ये होगा, आंसर ये होगा, शाबाश, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे प्लस आई। हाँ, अगर इन दो का कंपैरिजन कर लेंगे, प्लस आर प्लस आई, प्लस आर वहां पे डोमिनेट करता है। हाँ, अगर अब हमें ऑर्डर देना होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, बी की, शाबाश। उसके कम किसकी होगी, शाबाश, डी की, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई इफेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए, अब ए और सी, यहाँ पे माइनस आई, ये विड्रा करा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है तो ए ही आ जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और सबसे कम सी की। दिस विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस वेरी केस। सबसे ज्यादा किसकी, उसके बाद इस डी की, और उसके बाद ए की, और उसके बाद सी की। हाँ, शाबाश। अब आप लोगों को कंसेप्ट आ गया होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेंगे दिस विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेंगे दिस विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब पता तो चल गया होगा कि किस किस पोजीशन पे इंक्रीज कर रहे हैं, किस किस पोजीशन पे डिक्रीज कर रहे हैं। सपोज डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब क्वेश्चन इस तरह से नहीं है, ऑप्शन तो यही है, ऑप्शन तो यही है। मतलब वहां पे उसने कहा कि गिव द ऑर्डर ऑफ, गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक, यहां पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोफिलिक substitution order, give the decreasing order of electrophilic substitution। मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा, शाबाश, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट मीन जब ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट विल बी loving the electrons, electron loving, it is electron loving, it is electron। इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाना चाहेगा, उसी पोजीशन पे जहां पे डियर स्टूडेंट्स, उसी पोजीशन पे यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यही आप लोगों को वहां पे ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देख लीजिए, अब इलेक्ट्रोफाइल किस कंपाउंड पे ज्यादा अटैक कर लेगा और किस किस पोजीशन पे जाना चाहेगा। देख लीजिए, जहां जहां पे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, बी, अभी मैंने कहा कि बी ओ हैज मोर प्लस आर इफेक्ट देन माइनस आर इफेक्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, किस किस पोजीशन पे होगी वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। और आप लोगों को अब पता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, मींस इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले किसको चाहेगा कि अटैक करना है, इसको, उसके बाद इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उसके बाद इसकी, और इसके बाद इसकी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम ऑर्डर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लवर, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, और सबसे कम इसकी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद रेस्पेक्ट टू दिस वेरी एग्जांपल दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, शाबाश।
यहां पे मैं एक ऑर्डर आप लोगों को दूंगा और आप लोग खुद बाद में हर एक एग्जांपल का आंसर दे सकते हो विद रेस्पेक्ट टू दैट वेरी ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ प्लस आर इफेक्ट एंड ऑर्डर ऑफ माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मैं यहां पे मैं लिखूंगा। प्लस आर इफेक्ट ऑर्डर है, सबसे CH2 नेगेटिव, उससे कम NH नेगेटिव, उससे कम O नेगेटिव है, उससे कम NH2, उससे कम NHR, उससे कम NR2, उससे कम OH, याद रख लीजिए, उससे कम OR, NH, C डबल बॉन्ड O, CH3। यहां पे लोन पेयर है, मैंने ये भी कहा जिसके पास लोन पेयर होगा डायरेक्टली वो रिंग को डोनेट कर देगा। और उसके बाद O देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O, CH3 है, शाबाश। दिस इज द प्लस आर इफेक्ट ऑर्डर, डिक्रीजिंग प्लस आर इफेक्ट ऑर्डर। यहां पे मींस इसका सबसे ज्यादा प्लस आर इफेक्ट होगा, उससे कम इसका, उससे कम इसका, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में NH2 का NHR से ज्यादा होगा। हाँ, नाउ माइनस आर इफेक्ट ऑर्डर, CH2 पॉजिटिव, उससे कम NO2, उससे कम C ट्रिपल बॉन्ड N, उससे कम C डबल बॉन्ड OH, उससे कम कीटोन का, उससे कम कार्बोक्सिलिक एसिड का, उससे कम C डबल बॉन्ड O NH2 का, मैंने कहा कार्बोनाइल ग्रुप, हाँ याद रख लीजिए, उससे कम एसिड क्लोराइड का C डबल बॉन्ड O Cl, और सबसे कम यहां पे एस्टर्स C डबल बॉन्ड O OR। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर ये O, हाँ इस तरह से मैंने कहा O से डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग से, O से डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग से, तो O का जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट कर देगा विद द बेंजीन रिंग। एट दैट वेरी टाइम इट विल बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होगा बेंजीन रिंग को, एट दैट वेरी टाइम इट विल बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। दिस इज अबाउट the order of plus R effect and minus R effect. Plus R effect and minus R effect. Electron withdrawing effect and electron donating effect. हाँ, या यहाँ पे हम कहेंगे dear students, this is the plus R effect order and minus R effect order. With respect to these very two orders, आप लोगों को ये सीरीज याद करनी है. With respect to this very series, it will become very easy for you to predict. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से अभी मैंने क्वेश्चन कहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आप लोगों को विद रेस्पेक्ट टू माइनस आर इफेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू प्लस आर इफेक्ट, ये अच्छी तरह से पता चल जाएगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सीरीज आप लोग याद कीजिए। हाँ, शाबाश। नाउ फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरह से होगा, गिव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर। हाँ, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन में ये होगा CN, सायनोबेंजीन। हाँ, बी पार्ट में इस तरह से होगा NO2, C में NH2, D में इस तरह से होगा OH। गिव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर और गिव द इलेक्ट्रॉन। और एक क्वेश्चन जिस तरह से मैंने एक जो इससे पहले एग्जांपल यहां पे डिस्कस किए, गिव द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर। मतलब इलेक्ट्रोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इट विल टेंड टू अटैक एट दैट वेरी पोजीशन वेयर देयर इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो मैंने अभी यहां पे एक्सप्लेन किया है विद रिस्पेक्ट टू प्लस आर एंड प्लस आई इफेक्ट। यहां पे देख लीजिए, दिस इज
बेंजीन को CN अटैच है, अभी मैंने कहा CN कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CN, इट इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CN। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर कौन है? शाबाश। कार्बन को कंसिडर कीजिए X, Y कंसिडर कीजिए नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन कार्बन, इट विल हैव -R इफेक्ट, इट विल हैव -R इफेक्ट। नाउ NO2 ये -R है, और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन कार्बन, इट विल हैव -I इफेक्ट आल्सो, इट विल हैव -I इफेक्ट आल्सो। शाबाश। यहां पे +R और -I, शाबाश। यहां पे +R -I, लेकिन डोमिनेट कौन कर लेगा? यहाँ पे +R, यहाँ पे भी डोमिनेट कर लेगा कौन? +R। हाँ, यहाँ पे ये नेग्लेजिबल है, यहाँ पे -I नेग्लेजिबल है। कहा है मैंने विद रेस्पेक्ट टू +R एंड M, what we can say +R -R effect, it always dominates over inductive effect, except in chlorine, bromine and iodine। शाबाश। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? ये भी -R, यहाँ पे -R -I, लेकिन यहाँ पे +R मीन्स -I, यहाँ पे भी -I, यहाँ पे भी नेग्लेजिबल। अब इन दो का कंपैरिजन करना है। अब आप कहां पे देख लोगे? +R सीरीज में। पहले ये आता है NH2 मीन्स सबसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होगी? शाबाश। नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर इजीली अवेलेबल होगा, और बेंजीन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। उसके बाद भी क्योंकि +R इफेक्ट सीरीज, उसके बाद ये दोनों में, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी -R है, यहाँ पे -R -I, यहाँ पे -I भी है। दो इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। उस दैट मीन्स सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी होगी, और तीसरी पोजीशन पे शाबाश B, दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर, दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि इसका +R इफेक्ट इससे ज्यादा है। आफ्टर दैट किस +R इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर रहा है किसको? बेंजीन को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, सेकंड पोजीशन पे ये होगा। इन दो का कंपैरिजन कीजिए, इसका -R एज वेल एज -I इफेक्ट है, और -R सीरीज में भी देख लीजिए, ये पहले आता है, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी की होगी, और दैट इज व्हाई ये थर्ड पोजीशन पे है। शाबाश। नाउ गिव द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल किस पे ज्यादा अटैक करना चाहेगा? इस पे, उसके बाद इस पे, आफ्टर दैट दिस, आफ्टर दैट दिस। और एक यहाँ पे चीज, और एक यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करता है? जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, Nu नेगेटिव, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ये कहां पे इलेक्ट्रॉन? इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच सबस्टेंस। Now dear students, remember that nucleophile always attacks at that very center where there is minimum electron density. Remember it, minimum electron density. nucleophile किस पोजीशन पे अटैक कर लेगा? उसी पोजीशन पे जहां पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। शाबाश। यहां पे अगर क्वेश्चन होगा, give the nucleophilic substitution order, give the nucleophilic substitution order, याद रख लीजिए। शाबाश। न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, it will attack at that very compound या that very substance जहां पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। जिस तरह से इलेक्ट्रोफाइल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबस्टेंस पे अटैक कर लेगा। किसके पास मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे है? शाबाश। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, किस? -R इफेक्ट और -I इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बेंजीन में होगी, मींस न्यूक्लियोफाइल ज्यादा इस पे अटैक करना चाहेगा, उसके बाद इस पे रिवर्स ऑर्डर, और उसके बाद शाबाश डियर स्टूडेंट्स D पे, क्योंकि इसका +R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, और उसके बाद C पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रख लीजिए, इतना याद रख लीजिए।
electrophile will attack at the center, which will have maximum electron density, while a nucleophile will attack at that very center, which will have minimum electron density. हाँ, शाबाश. Nucleophile order इसका reverse. हाँ, शाबाश. Now, क्वेश्चन इसी तरह से होगा. क्वेश्चन इसी तरह से होगा. ऑप्शंस ये होंगे. ये 3 ऑप्शंस में यहां पे F, यहां पे C में Cl. हाँ, शाबाश. ये 3 ऑप्शंस है. गिव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर. बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप अटैच नहीं है, नो इफेक्ट. शाबाश. यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शाबाश. क्लोरीन में भी और फ्लोरीन में भी. अभी मैंने कहा था कि हमेशा जो प्लस आर माइनस आर इफेक्ट है डोमिनेट कर लेगा विद रेस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन इनके साथ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, हाँ, इनके साथ हेलोजन्स एक्सेप्ट फ्लोरीन, हाँ, माइनस आई ज्यादा होता है, हाँ, प्लस आर से. माइनस आई ज्यादा होता है प्लस आर से, बिकॉज हेलोजन्स का प्लस आर इफेक्ट भी है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये डोनेट करना चाहेंगे बेंजीन रिंग को, लेकिन इसके साथ साथ उनका माइनस आई इफेक्ट भी है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट. हाँ, इनका माइनस आई इफेक्ट किस का? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का. एंड फ्लोरीन का, जो फ्लोरीन है इसका माइनस आई कम होता है प्लस आर से. मीन्स इसका प्लस आर भी है और माइनस आई भी है, इसका भी प्लस आर भी है और माइनस आई भी है, लेकिन इसका माइनस आई ज्यादा है प्लस आर से, इसका प्लस आर ज्यादा है माइनस आई से. मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा. अब आप लोग समझ कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे, सर वाई? आपने सुना होगा कि फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन. जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में किसकी है? क्लोरीन की. होनी चाहिए फ्लोरीन की, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर. बट रिमेंबर दैट फ्लोरीन का साइज बहुत कम होता है. फ्लोरीन का साइज बहुत कम होता है. जब हम उसे इलेक्ट्रॉन देंगे मतलब इसका इंडक्टिव इफेक्ट, जब ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, उसका साइज बहुत कम है, वहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की ज्यादा चांस है. दैट इज वाई इसका प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा है. ये इलेक्ट्रॉन देता ही है. हाँ, शाबाश. इतना याद रखिए. किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब ज्यादा है? इस पे नो इफेक्ट है, इसका प्लस आर इफेक्ट ज्यादा है देन माइनस आई. इसका माइनस आई ही ज्यादा है प्लस आर से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रा कर लेगा. अब किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? बी. अब ए और सी का कंपैरिजन कीजिए. इसका माइनस आई, इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं, और सी. दिस विल बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर, या ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन. हाँ, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफाइल किस पे ज्यादा अटैक कर लेगा? जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसके बाद इस पे, और सबसे कम इस पे. हाँ, शाबाश. This is about dear students with respect to plus R effect, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, माइनस आर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है कंजुगेटेड सिस्टम में. किस पोजीशन पे? शाबाश डियर स्टूडेंट्स. माइनस आर इफेक्ट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. स्पेशली याद रख लीजिए एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस. शाबाश. मेटा पोजिशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. हाँ, शाबाश. यहां पे और एक एग्जांपल, और उसके बाद हम एसिडिटी ऑर्डर को यहां पे एक्सप्लेन कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू प्लस आर है. क्वेश्चन इसी तरह से होगा. गिव द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ए पार्ट इस तरह से होगा. यहां पे CH2 पॉजिटिव है. बी पार्ट यहां पे NO2 है. सी पार्ट यहां पे Cn है, और डी पार्ट यहां पे ये बेंजल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH. गिव द
यहां पे इस तरह से होगा, गिव द न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन ऑर्डर। न्यूक्लियोफाइल पता ही है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इसका शाबाश डियर स्टूडेंट्स माइनस आर इफेक्ट है, इसका भी माइनस आर एज वेल एज माइनस आई, इसका माइनस आर इफेक्ट है, इसका माइनस आर इफेक्ट है। माइनस आई नहीं है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए विद रेस्पेक्ट टू दिस, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर देन, शाबाश, देन दिस वेरी कार्बन, देन दिस वेरी कार्बन। यहां पे देख लीजिए विद रेस्पेक्ट टू, हम यहां पे हमने हाइपर कंजुगेशन डिस्कस नहीं की है। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हाइपर कंजुगेशन हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं की है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज व्हाई कि दिस इज अ कार्बोकैटायन, वी विल से दैट कार्बोकैटायन CH2, इट इज ऑलवेज, इट हैज ऑलवेज द, सबसे ज्यादा इसका माइनस आर इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा माइनस आर इफेक्ट दिस वेरिया CH2 पॉजिटिव का होता है, जो मैंने कहा है। इसका मीन्स माइनस आर इफेक्ट इसके माइनस आर इफेक्ट से बहुत ज्यादा है। शाबाश। नाउ, और इसका माइनस आई इफेक्ट भी होता है, इसका माइनस आई इफेक्ट भी होता है। शाबाश। इसका माइनस आर इफेक्ट, माइनस आई, माइनस आर, माइनस आई, इसका माइनस आर माइनस आई इफेक्ट, मतलब माइनस आर इफेक्ट किससे ज्यादा होता है? NO2 से। मीन्स सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होगी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी माइनस आर, ये भी माइनस आर, चारों के चारों माइनस आर इफेक्ट से, शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन से विड्रॉ कर रहे हैं। मीन्स इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। स्पेशली किस किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी देखा है हमने? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। नाउ न्यूक्लियोफाइल किस, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन किस पे होगी? शाबाश, जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ए में सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। ये कहां से आप लोगों को पता चल जाएगा? माइनस आर इफेक्ट ऑर्डर से, क्योंकि यहाँ पे माइनस आर, सिर्फ माइनस आर ग्रुप्स लगे हुए हैं। हाँ, शाबाश। ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शाबाश। विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन, विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, जो आपने इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन में ऑर्डर देखा, उसका रिवर्स, न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा उस पोजीशन पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, मतलब माइनस आर इफेक्ट ग्रुप्स आर बेटर सेंटर्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। शाबाश। नाउ एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट, एसिडिटी ऑर्डर। देख लीजिए 2-3 एग्जांपल विद रेस्पेक्ट एसिडिटी ऑर्डर। हम एसिडिटी ऑर्डर, the acidity order, dear students, we will discuss the acidity order with respect to plus R and minus R effect. Shabash. Before discussing acidity order, remember that ये मैंने dear students inductive effect में भी ये explain किया है। For example, there is HA. HA is an acid. When it dissociates, there is the formation of H positive plus A negative. A negative anion, or we can say it is the conjugate base of the acid HA. Remember that the strength of an acid HA will depend upon the stability of the anion or the conjugate base. More stable the conjugate base or the anion, जितनी ज्यादा stable ये conjugate base होगी, उतना ही stronger ये acid होगा। Remember it. और एक चीज विद रेस्पेक्ट टू आयोनिक इक्विलिब्रियम, और वो ये मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में भी एक्सप्लेन किया। देयर इज अ टर्म के वहां पे मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, याद रख लीजिए। फॉर एग्जांपल दिस वेरी आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू 10⁻⁻20, 10⁻⁻23 एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। जितना Ka का वैल्यू होगा, इफ Ka इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस, ये सिंपल कंसेप्ट है। Ka का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, एसिडिटी का वैल्यू, एसिडिटी विल इंक्रीज।
To simplify value of k, there is another term pk. It is equal to minus log of k. ये मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था, और वहां पे मैंने कहा था कि अब जब इंक्रीज हो जाता है, एसिडिटी इंक्रीजेस, pKa डिक्रीजेस बिकॉज इट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ k. ये बस इतना याद रख लीजिए. अगर कोई एसिड, याद रख लीजिए कितने कंसेप्ट यहां पे हैं, 2-4 कंसेप्ट मैंने बताए. If and the stability of the conjugate base is more, if the anion has more stability, the corresponding acid is stronger. मतलब अगर यहाँ पे एक एसिड डिसोसिएट हो रहा है, एसिड जब डिसोसिएट हो जाता है as per Brostol-Lowry concept, it donates a proton and there is the formation of the anion. That very anion is the conjugate base of the acid. More the stability of the conjugate base, more stronger will be the acid. जब ये स्ट्रांगर होगा तो उसका के वैल्यू ज्यादा होता है, मीन्स इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है, और इसका पीके वैल्यू कम होगा. याद रख लीजिए, पीके सिंपलीफाई करता है के वैल्यू को, बस सिंपल इतना है. ये 10, 20 एंड एटसेट्रा वैल्यू में आ जाता है, बस इतना याद रख लीजिए. पीके एसिड का, पीके वैल्यू एसिड का कम होता है. इफ द वैल्यू ऑफ पीके इज लेस, K will be more, acidity will be more. If the value of pK will be more, K will be less and acidity will be less. बस इतना कंसेप्ट है ये. हाँ, शाबाश. एसिडिटी ऑर्डर with respect to plus R and minus R इफेक्ट, या प्लस M एंड माइनस M इफेक्ट. शाबाश, बस इतना ये भी याद रख लीजिए. हाँ, शाबाश. फॉर एग्जाम्पल इस तरह से पूछा जाएगा, दिस इज, यहां पे फिनाल है, यहां पे OH है, और यहां पे NO2 अटैच है. सी पार्ट, यहां पे CH3 है. Give the acidity order, or which of the following is strongest acid. ये भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, which of the following is the strongest acid, या give the decreasing order of acidity, या which of the following has most stable conjugate base. इस तरह से भी हो सकता है. यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH. यहाँ ऊपर हम OH रखेंगे, यहाँ पे CH3 रखेंगे. शाबाश. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बताया कि स्ट्रांगर, मोर स्ट्रांगर द एसिड, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस. देख लीजिए यहां पे अगर ये फिनाल है, जब ये, फॉर एग्जांपल वी विल से दैट वी आर डिस्कसिंग द एसिडिटी ऑर्डर, जब ये प्रोटॉन को डोनेट कर लेगा एट दैट वेरी टाइम इट विल बिकम O नेगेटिव, दिस विल बिकम O नेगेटिव एंड दिस विल आल्सो बिकम O नेगेटिव. शाबाश. These are the conjugate bases. These are the conjugate bases of the acid phenol. Conjugate base of the acid para-nitrophenol and para-methyl phenol. शाबाश. Now dear students, अभी मैंने जो प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट कहा, this will withdraw electrons. शाबाश. This is electron withdrawing group. In other words, it will have minus R effect. है ना, इसका माइनस R और माइनस I इफेक्ट है. शाबाश. इसका प्लस I इफेक्ट है. CH3 का प्लस I इफेक्ट है. NO2 विड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन, और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये कम हो जाता है. दैट मीन्स, remember that electrons withdrawing, those groups having minus R or minus I effect, they will decrease or disperse. These will disperse negative charge. Negative charge. These are dispersing negative charge. वो negative charge को कम कर रहे हैं. And शाबाश, those groups plus R or plus I, they will intensify. Means increase. They will intensify negative charge. याद रख लीजिए, क्योंकि हमें with respect to anion देखना है कि स्टेबिलिटी कहां पे है. जहां पे
माइनस आर इफेक्ट होगा, याद रख लीजिए, माइनस आर इफेक्ट होगा। दिस विल डिस्पर्स, दिस विल डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करते हैं, वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। दिस विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी। सिंपल टर्म्स में याद रख लीजिए, माइनस आर ग्रुप्स विल डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज, माइनस आर ग्रुप्स विल डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज, माइनस आई ग्रुप्स, एंड प्लस आर प्लस आई ग्रुप्स विल increase, intensify the negative charge. These will intensify the negative charge and they will decrease the stability. Minus R effect will increase the stability because stability of the anion. जहां कहीं पे stability of the anion, ये भी मैंने कहा conjugate, this will be the conjugate base, इसकी stability increase हो रही है with the help of these very groups having minus R and minus I effect. उसका एसिड जो corresponding एसिड होगा वो more stronger होगा. That means यहां पे शाबाश, ये H और यहां पे H, उसकी जो कंजुगेट बेस है हमने देख ली, वो किसकी स्टेबल है, बी की। उसके बाद इन दो का कंपैरिजन कीजिए, यहां पे प्लस आई इफेक्ट है, यहां पे शाबाश देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे फिनाल है लेकिन यहाँ पे प्लस आई, फिनाल के साथ साथ प्लस आई इफेक्ट भी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा होगी, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ ही जाएगा क्योंकि इसने प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे दिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। दैट मींस ए विल हैव मोर, फिनाल इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन सी, दिस विल बी द एसिडिटी ऑर्डर, दिस विल बी द एसिडिटी ऑर्डर। सिंपल टर्म्स में याद रख लीजिए, जिसका जब माइनस आर या व्हाट वी कैन से माइनस आई ग्रुप्स अटैच होंगे एक कंपाउंड को जो प्रोटॉन डोनेट कर लेगा, फॉर एग्जांपल फिनाल, इट विल हैव टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन। एसिडिटी ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू फिनाल हम डिस्कस कर लेंगे, या विद रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वहां पे भी दीज आर प्रोटॉन डोनर्स। और वहां पे ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स अटैच है, कौन से ग्रुप्स अटैच है, माइनस आर इफेक्ट याद रख लीजिए, these will disperse the negative charge, और प्लस आर इफेक्ट these will intensify, increase the negative charge। जो नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करते हैं वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर लेंगे वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर लेंगे। हाँ शाबाश, ये क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू एसिडिटी ऑर्डर। हाँ शाबाश। नाउ बस इतना याद रख लीजिए, इतना याद रख लीजिए, सिंपल टर्म्स में याद रख लीजिए। ये एक एग्जाम, ये एक ट्रिक आप याद रख लीजिए, माइनस आर इफेक्ट ग्रेटर देन माइनस एच। अभी हमने हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट नहीं पढ़ा, विच विल बी ग्रेटर देन माइनस आई, विच विल बी ग्रेटर देन प्लस आई, विच विल बी ग्रेटर देन प्लस एच, एंड सबसे plus R. This is acidity order with respect to acidity order, with respect to acidity order, acidity order। हाँ, कौन सा ग्रुप अगर माइनस आर ग्रुप अटैच होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी माइनस एच से, विच इन टर्न प्रेफरेंस मिलेगी, मतलब उसकी डोमिनेंस है माइनस एच से, एंड इन दिस वेरी केस एसिडिटी ऑर्डर में आप लोगों को देखना होगा कि माइनस आर ग्रुप किसको अटैच है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, अगर प्लस आर ग्रुप होगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस ये देख लीजिए, ये ऑर्डर देख लीजिए। माइनस एच एंड प्लस एच हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। हाँ शाबाश। यहाँ पे गिव द एसिडिटी ऑर्डर, इसका अगर हो सकता है यहाँ पे देख लीजिए, OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी NO2। हाँ OH और यहाँ पे NO2 देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। इन दिस वेरी केस OH दैट इज फिनाल, हाँ ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, O नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव। लेकिन रिमेंबर दैट मोर द नंबर ऑफ माइनस आर ग्रुप्स मोर द एसिडिटी, मोर द एसिडिटी। किसकी अब एसिडिटी ज्यादा होगी? ये A है, ये B है, ये C है, मीन्स बी के पास कितने माइनस आर ग्रुप्स है? 2, और उसके बाद C पे 1 और A के पास कोई नहीं। दिस विल बी द एसिडिटी ऑर्डर, दिस विल बी द, इस तरह से होगा। Which of the following acids will have more
द स्टेबिलिटी ऑफ इट इज कंजुगेट बेस, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच है माइनस आर ग्रुप्स, दिस विल withdraw the electron density from shabash, this will disperse the negative charge of oxygen atom, ऑक्सीजन पे जब ये प्रोटॉन लॉस कर लेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को जो कम कर लेंगे वही एसिडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और वही एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, इस तरह से होगा। के वैल्यू किसका ज्यादा होगा? जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या जिसकी कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगी। पी के वैल्यू किसका ज्यादा होगा? जिसमें से अगर आएगा पी के वैल्यू किसका ज्यादा होगा? जिसका एसिडिटी कैरेक्टर कम होता है। पी के वैल्यू उसी का ज्यादा होता है जिसकी एसिडिटी कम होती है। एसिडिटी किसकी कम है? सबसे कम एसिडिक ए है, सबसे कम एसिडिक ए है इन तीनों में से। हाँ, शाबाश। ये भी आप लोगों ने देख लिया कि जितने माइनस आर ग्रुप्स एक कंपाउंड को या एसिडिक कंपाउंड को अटैच होंगे उतनी उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। हाँ, शाबाश। और ये ऑर्डर आप लोग हमेशा याद रख लीजिए। हाँ, शाबाश। और एक एसिडिटी ऑर्डर अगर इनमें हमें डिटरमाइन करना होगा, OH ये ए पार्ट होगा इस तरह से, OH यहां पे CH3, OH यहां पे CN, शाबाश। और यहां पे देख लीजिए, समझ लीजिए कि विद रेस्पेक्ट अगर आप लोगों ने प्लस आर सीरीज माइनस आर सीरीज याद की तो हर एक कंपाउंड का जितने भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को कराए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को खुद ब खुद आ जाएंगे, बस थोड़ा बहुत समझना है। OH और यहाँ पे NO2 देख लीजिए। अब क्या देखना है? दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। शाबाश। अभी मैंने क्या कहा? किसकी कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, वही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड, वही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड। उसके बाद क्या याद रखना है? माइनस आर ग्रुप्स कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस आर ग्रुप्स कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर लेंगे उन्हीं का कॉरस्पॉन्डिंग एसिड मोर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर लेंगे उनका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड लेस स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। शाबाश। यहाँ पे फिनाल है, शाबाश। विद रेस्पेक्ट टू दिस वेरी इफेक्ट, ये फिनाल है, हमें इसने फिनाल ने प्रोटॉन को डोनेट किया तो O नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव, आपको खुद आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? इसके पास प्लस I इफेक्ट है, मेटा पोजिशन पे है। हाँ? इसके पास माइनस आर इफेक्ट है और इसके पास माइनस आर भी है और माइनस आई भी है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचेगा? नेगेटिव चार्ज पे को सबसे ज्यादा कम कर लेगा NO2, और सबसे मोर स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस इसकी ज्यादा स्टेबल होगी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। उसके बाद इसका माइनस आर C, उसके बाद A और B का कंपैरिजन कीजिए, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, means it will donate electrons, it will intensify the negative charge, means it will increase, that means A will have more stronger, A is more stronger acid than B। ये इसका एसिडिटी ऑर्डर होगा, समझ लीजिए अच्छी तरह से। हाँ, शाबाश शाबाश। नाउ और एक एग्जांपल यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे NO2, अब आप लोगों को NH2 का पता चल गया होगा, अगर NH2 अटैच होगा तो क्या हो? यहाँ पे OH एंड यहाँ पे NO2
and OH. This is A, this is B, this is C and this is D. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिमिलर ग्रुप्स फिनाल को अटैच है NO2 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 माइनस आर एज वेल एज माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आर एज वेल एज माइनस आई, यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स दिस इज प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा, नहीं प्लस आर नहीं माइनस आर इफेक्ट मेटा पोजिशन पे नहीं होता है, यहाँ पे नो इफेक्ट। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस आर माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आर माइनस आई, इन दो का कंपैरिजन हमें करना है कि एसिडिक कौन सा ज्यादा है। शाबाश, मेन कंसेप्ट एसिडिक वही ज्यादा होगा जिसकी कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होती है। नाउ यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे NO2 है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 है, यहाँ पे भी माइनस आर यहाँ पे भी माइनस आर, लेकिन यहाँ पे माइनस आई यहाँ पे भी माइनस आई, सिमिलर है, ग्रुप्स भी सिमिलर है। रिमेंबर दैट मैंने कहा था कि विद रेस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, मतलब ये कम डिस्टेंस पे है या ये ज्यादा डिस्टेंस पे है, मींस एसिडिटी ऑर्डर विल बी A इज ग्रेटर देन B, और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, C एंड विल बी ग्रेटर देन D। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, actual order is B is greater than A, in this very case will be greater than D. This is expected order, याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एंड दिस इज एक्चुअल ऑर्डर। एक्चुअल ऑर्डर रीजन क्या है? एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि इन दिस वेरी केस ये जो हाइड्रोजन एटम है, it is involved in hydrogen bonding with that of the oxygen atom of the nitro group। याद रख लीजिए, intramolecular, this is known as intramolecular hydrogen bonding। due to intramolecular hydrogen bonding, हाइड्रोजन एटम ऑफ आर्थोनाइट्रोफिनॉल इजिली अवेलेबल नहीं होता है। दैट इज व्हाई डियर स्टूडेंट्स द एसिडिटी ऑफ आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेसर देन पैरानाइट्रोफिनॉल। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर B इज ग्रेटर देन A। पैरानाइट्रोफिनॉल हैज मोर एसिडिक कैरेक्टर देन आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑल्दो माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि ये नजदीक है। शाबाश। Thus dear students, we have discussed so many examples related to plus or minus I effect, related to order of electrophilic substitution, related to order of electron density, related to order of acidic character। Now ये ट्रिक आप याद रख लीजिए। नाउ यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, और तब आप लोग हर एक एग्जाम्पल पे अप्लाई कर सकते हो कि एसिडिटी ऑर्डर इजीली, यहां तक कि आप लोग इजीली अप्लाई ऑर्डर कर सकते हो कि ये ट्रिक आप लोग ने मैंने आप लोगों को दी है, ये याद रख लीजिए, and you will be comfortable to solve any type of an example related to acidity order, related to basicity order। याद रख लीजिए, एसिडिटी ऑर्डर उसका रिवर्स, उसका अपोजिट होता है बेसिसिटी ऑर्डर। जो एसिडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं वही बेसिसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, जो बेसिसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं वो एसिडिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। ये याद रख लीजिए, द कंसेप्ट इज रिवर्स। बस विद रेस्पेक्ट टू एसिडिटी ऑर्डर आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कंसेप्ट क्या है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वेरी क्लास वी हैव another very important lecture here, that is hyperconjugation। in the next class we are going to discuss it। dear students, tab tak ke liye all the very best।